بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، آج کا جو ٹاپک ہے یہ چیپٹر 1 کا لیکچر نمبر 6 ہے۔ اس سے پہلے 5 لیکچرز ہو چکے ہیں چیپٹر نمبر 1 کے، اور یہ چھٹا جو ہے وہ لیکچر ہے، اور لیکچر کا جو ٹائٹل ہے لیونگ ورلڈ ان ٹائم، لیونگ ورلڈ ان ٹائم۔ اس سے پہلے ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے وہ بھی ہم کر لیتے ہیں ساتھ ہی، لیونگ ورلڈ ان اسپیس۔ پہلے میں وہ کر لیتا ہوں تھوڑا سا، پھر اس کے بعد یہ کرتے ہیں۔ تو لیونگ ورلڈ ان، پہلے اسپیس میں دیکھ لیتے ہیں۔ لیونگ ورلڈ ان اسپیس، لیونگ ورلڈ ان اسپیس، لیونگ ورلڈ ان اسپیس جو ہے، پہلے ہم اس کو تھوڑا سا کور کر لیتے ہیں۔ یہ بہت ہی مختصر سا ٹاپک ہے، تو ہم اس کو پہلے کور کر لیتے ہیں۔ لیونگ ورلڈ ان اسپیس، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جتنے بھی لیونگ آرگنزمس ہیں دنیا میں، وہ اسپیس کے حساب سے، جگہ کے حساب سے کہاں کہاں رہتے ہیں اور کس طریقے سے رہتے ہیں۔ تو یہ جو ٹاپک ہے، یہ ایک ایکچولی شارٹ کوسچن ہے، اور شارٹ کوسچن بھی اس طرح سے نہیں آتا کہ ڈسکرائب دی لیونگ ورلڈ ان اسپیس، بلکہ اس کی بجائے اس کی بائیوم کی ڈیفینیشن پوچھی جاتی ہے۔ بائیوم کوسچن کیسے آئے گا آپ کو؟ واٹ از بائیوم، یا پھر ڈیفائن بائیوم۔ آپ نے یہ ورڈ جو ہے یہ آلریڈی بھی پڑھا ہوا ہے، 10th میں اس کا تھوڑا سا تعارف ہے، شاید 9th میں، کہ بائیوم کیا ہے؟ اے لارج ریجنل کمیونٹی، اے لارج ریجنل کمیونٹی، ریجنل کمیونٹی، اے لارج ریجنل کمیونٹی determined by climate۔ فار ایگزامپل، اس کی ایگزامپل کون کون سی ہیں؟ فار ایگزامپل ٹنڈرا، گراس لینڈ، ڈیزرٹ اینڈ فارسٹ۔ یہ ساری کیا ہے؟ بائیوم کی ایگزامپلز، بائیوم کی ایگزامپلز ہیں۔ بائیوم ہے کیا؟ کہ اے لارج ریجنل کمیونٹی ڈیٹرمنڈ بائی کلائمیٹ، یعنی یہ فرض کریں ہمارا دنیا ہے، ورلڈ ہے، تو اس میں بہت سارے ایریاز ایسے ہیں جن میں کلائمیٹ کا مطلب ہوتا ہے ایک لمبے عرصے تک، فار ایئرس اینڈ سینچریز، جو موسم وہاں پہ ہوتا ہے وہ کلائمیٹ کہلاتا ہے۔ یعنی کلائمیٹ فار ایئرس اینڈ سینچری، یعنی صدیوں سے جو موسم وہاں پہ چلا آتا ہے اس کو ہم کلائمیٹ کہتے ہیں۔ تو یہ جو جتنے بھی میں نے ایریاز یا جتنے بھی میں نے بائیومس آپ کو بتائے ہیں، یہ بائیومس اصل میں دنیا میں پائے جانے والے خطے ہیں، بہت بڑی کمیونٹی ہیں، اور ان میں ایک خاص قسم کا جو ہے وہ کلائمیٹ ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ٹنڈرا، میں نے کہا ٹنڈرا جو ہے یہ وہ کلائمیٹ ہے جس میں ٹیمپریچر سارا سال سب زیرو، یعنی کہ زیرو سے نیچے رہتا ہے، اور برف جمی رہتی ہے، اور وہاں پہ جو جاندار ہوتے ہیں وہ بہت ہی لمیٹڈ نمبر میں ہوتے ہیں، بہت تھوڑی تعداد میں ہوتے ہیں اور مخصوص ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ٹنڈرا کے بعد ڈیزرٹ کی مثال لے لیں۔ ڈیزرٹ دنیا میں پایا جانے والا ایک ایسا ایریا ہے جہاں رین فال، بارش کم ہوتی ہے، جہاں پہ سینڈی سوئل ہوتی ہے، یعنی ریتلی زمین ہوتی ہے، اور وہاں پہ بارشیں بالکل نہیں ہوتی، اور جو پودے اور جانور وہاں پہ پائے جاتے ہیں وہ بہت ہی مخصوص ہوتے ہیں، جو کہ اس کلائمیٹ میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے گراس لینڈ ہے۔ گراس لینڈ وہ ایریا ہے، دنیا میں بہت سارا ایریا ایسا ہے
जैसे हमारे वादी कागान और ये जो कश्मीर सॉरी नीलम का जो एरिया है वो बहुत सारा यानी घास के सब सरसब्ज मैदान है, वहाँ पे जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो भी मखसूस होते हैं जो कि उस एरिया में यानी अपने आप को एडजस्ट करते हैं। तो ये था यानी बायोम। बायोम क्या है? एक बहुत बड़ा एरिया जहाँ पे एक मखसूस किस्म का क्लाइमेट हो और वहाँ पे जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वो उस क्लाइमेट के मुताबिक होते हैं। और इसकी जो डेफिनेशन जो एग्जाम्पल है, जैसे मैंने कहा, टंड्रा है, ग्रासलैंड है, डेजर्ट है और फॉरेस्ट है। ये था लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। और जैसे मैंने कहा ये शॉर्ट क्वेश्चन है और ये शॉर्ट क्वेश्चन इसी तरह से आता है कि व्हाट इज बायोम, व्हाट इज बायोम। तो उसके बाद जो नेक्स्ट यानी जो मेन टॉपिक है ये नाउन क्वेश्चन भी है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट इस लिहाज से है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको इसको समझने में खासी मुश्किल पेश आती है। ये शॉर्ट क्वेश्चन कभी कभार वैसे आता है, लेकिन इसमें से एमसीक्यू अक्सर आता है। एमसीक्यू इसमें कैसे बनता है, कैसे आता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल आप इसको टॉपिक को समझें कि लिविंग वर्ल्ड इन टाइम का मतलब क्या है। सबसे पहले देखें लिविंग वर्ल्ड इन टाइम का मतलब ये है कि जब से ये दुनिया बनी है, जब से ये दुनिया बनी है उसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कब पैदा हुए, कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म कितने साल पहले पैदा हुए, उसके बाद कब उनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई और कब उनकी तादाद बिल्कुल कम हो गई और कब वो बिल्कुल दुनिया से ख़त्म हो गई। यानी जब से ये दुनिया बनी है तब से लेकर आज का जो ज़माना है ये एक टाइम है, पूरा टाइम। इसको हमने मुख्तलिफ ज़मानों में तकसीम कर दिया। ये देखें, और इस पूरे तो जब हमने इसको मुख्तलिफ ज़मानों में तकसीम कर दिया तो एक चार्ट बन गया। इस चार्ट को कहते हैं जियोलॉजिकल टाइम चार्ट। ये जियोलॉजिकल टाइम चार्ट है, जियोलॉजिकल टाइम चार्ट, जियोलॉजिकल टाइम चार्ट। तो जियोलॉजिकल टाइम चार्ट का आपको समझ आ गई कि जब से दुनिया बनी है वहाँ तब से या जब से ये यानी ज़माना शुरू या वक्त शुरू हुआ है, तो इस वक्त में यानी इस वक्त को हमने कब यानी मुख्तलिफ ज़मानों में तकसीम किया और ये भी देखा कि उस मुख्तलिफ ज़मानों में कौन कौन से जानदार जो थे वो पैदा हुए और कब वो उनकी तादाद बढ़ी, कब उनकी कम हो गई। ये सारी चीज़ें जो हैं ये यानी जियोलॉजिकल टाइम चार्ट में यानी पूरा जो वक्त है वो हमने उसको मुख्तलिफ ज़मानों में तकसीम किया। अभी मैं इसकी आपको डिटेल भी बता दूँ कि ये इसको जियोलॉजिकल टाइम चार्ट कहते हैं और जियोलॉजिकल टाइम चार्ट की तादाद है वो 3000 मिलियन ईयर से हुई, 3000 मिलियन ईयर से। 3000 मिलियन ईयर्स का मतलब ये है कि 3000 मिलियन ईयर्स पहले दुनिया में पहला जानदार पैदा हुआ। यानी ये वो जानदार है जो दुनिया में सबसे पहले पैदा हुआ और इसके बारे में कहा जाता है कि ये एक प्रोकैरियोट से यानी इससे मुराद ये है कि ये कोई बैक्टीरिया था। प्रोकैरियोट इसको कहते हैं ऐसा जानदार जिसमें डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस नहीं होता, उसको हम प्रोकैरियोट कहते हैं। और प्रोकैरियोट के बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया में जितने भी जानदार हैं ये सबका यानी ये एंसेस्टर, ये सबका एंसेस्टर है, यानी इस सबका सारे जानदार इसी से पैदा हुए हैं, सारे जानदार जो है वो इसी से। तो ये कब है? ये पहला एमसीक्यू है कि दुनिया में सबसे पहला जानदार कब पैदा हुआ, 3000 मिलियन ईयर्स अगो। अब इस जानदार से जो मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिज्म पैदा, इसी से प्लांट्स पैदा हुए और इसी से एनिमल पैदा हुए। अब प्लांट वाला हिस्सा मैंने छोड़ा हुआ है, ये सिर्फ एनिमल वाला हिस्सा है कि इसी से
यानी ये जो पहला ऑर्गेनिज्म था जो दुनिया में पैदा हुआ, जो सबका इंसेस्टर है, इसी से फिर क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ किस्म के जानदार पैदा हुए। सबसे पहले जो जानदार पैदा हुए, ये देखिए इनवर्टिब्रेट्स, यानी इससे जानदार, मैं एनिमल्स की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या पैदा हुआ, इनवर्टिब्रेट्स। अब ये जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, आपने देखा कि इनवर्टिब्रेट्स जो है ये यहाँ से स्टार्ट होते हैं, यहाँ से इसकी इब्तिदा होती है। ये जो डायग्राम है जहाँ से ये स्टार्ट होती है, इसका मतलब है यहाँ से ये जानदार पैदा हुए और कब पैदा हुए, इसके सामने उसका पीरियड दिया हुआ कि कब किस जमाने में पैदा हुए। ये जो इनवर्टिब्रेट्स हैं एक्चुअली 500 मिलियन साल पहले पैदा हुए और उसके बाद इनकी तादाद बढ़नी शुरू हो गई, यानी इस एरिया में जाके, यानी इस ये जो दो यानी ईरा हैं, इनमें इनकी तादाद बढ़ती गई और इस ईरा में जाके इसकी तादाद कम हो गई, उसके बाद फिर इसकी तादाद बढ़ गई। ये इसका मतलब है। एक बार ये देखें, ये जो है ये फिश है, फिश के बारे में कि ये जो फिश है ये वर्टिब्रेट है और सबसे पहले वर्टिब्रेट इसी यानी इस ईरा में पैदा हुआ, यानी इससे थोड़ा अरसा बाद। और ये कौन सा, साइलूरियन पीरियड। साइलूरियन पीरियड में ये देखिए इसके सामने क्या है, साइलूरियन ईरा में ये पैदा हुआ, उसके बाद इसकी तादाद बढ़ती गई। इस ईरा में, इसको पैलेज़ोइक ईरा कहते हैं, वहां पे इसकी जो तादाद है वो कम होनी शुरू हो, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता कम होती है, फिर थोड़ी सी बढ़ती। इसी तरह से रेप्टाइल्स की मिसाल, रेप्टाइल्स जो है ये पर्मियन जो पीरियड है 270 मिलियन साल पहले, तब ये पैदा हुए और आहिस्ता आहिस्ता इनकी जो तादाद थी वो बहुत बढ़ती गई और यहाँ पे आ गए। ये वाला जो एरिया है, यानी ये वो जो ईरा है, यहाँ पे इनकी तादाद सबसे ज्यादा हो गई और ये सबसे ज्यादा तादाद कब है, जुरासिक पीरियड। जुरासिक पीरियड वो पीरियड है जिसमें दुनिया के ऊपर जो क्या उसको कहते हैं, रेप्टाइल्स की या जो डायनासोर्स थी उनकी हुकूमत थी। हर जगह पर जो डायनासोर ही डायनासोर थे, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि रेप्टाइल्स यहाँ पे आके खत्म हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, दुनिया में खत्म हो गए, ये यहाँ पे आके खत्म हो गए। तो ये जो चार्ट है, जियोलॉजिकल चार्ट, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आपने ये बताना है कि कौन सा ईरा जो है, कौन सा जमाना जो है वो कितने साल पहले था, जिसमें से एमसीक्यू बनता है। देखिए पहला यानी टोटल जो जमाना है, टोटल जो टाइम है, उसको 3 जमानों में तकसीम किया जाता है। सीनोज़ाइक 70 मिलियन साल पहले की बात है। उसके बाद मेसोज़ाइक 135 मिलियन साल पहले की बात है। उसके बाद बल्कि 225 से लेकर 135 मिलियन साल पहले का ये वाला जो जमाना है, इसको मीसोज़ाइक कहते हैं। मीसोज़ाइक जो है 225 मिलियन साल पहले से शुरू होता है और 135 मिलियन साल तक आता है। उसी के बाद पैलियोज़ाइक ये जो रेड में है, ये 3 जमाने हैं। पैलियोज़ाइक जो जमाना है, इसमें पर्मियन पीरियड जो है वो 270 मिलियन साल पहले, कार्बोनिफेरस 350 मिलियन साल पहले, जुरासिक 180 मिलियन साल पहले, डिवोनियन 400 मिलियन साल पहले, साइलूरियन 440 मिलियन साल पहले, आर्डोविशियन 500 मिलियन साल पहले और जो कैम्ब्रियन है ये 600 मिलियन साल पहले। तो ये जो फिगर्स हैं ये इंपॉर्टेंट है फॉर द एमसीक्यू। और आपको अंदाजा हो गया होगा कि सारे जो वक्त है उसको हमने मुख्तलिफ ज़मानों में तकसीम किया और मुख्तलिफ ज़मानों में हमने देखा कि कौन से जानवर किस ज़माने में पैदा हुए, किसमें ये इनकी तादाद बढ़ गई और कहाँ जाके इनकी तादाद कम हो गई। इसको कहते हैं जियोलॉजिकल टाइम। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपने इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। ये खासा मुश्किल चार्ट होता है और अक्सर बच्चे इसको नहीं बनाते। इसकी डिस्क्रिप्शन, तो इसकी डिस्क्रिप्शन आपने कैसे लिखनी है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर, ये चार्ट को चार्ट से हट, तो चार्ट को मैं पहले जो है इरेज कर देता हूँ ताकि आपको यानी जो लॉन्ग क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है
اس کے بارے میں بتایا جائے کہ لانگ کوشچن آپ نے کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو لانگ کوشچن میں سب سے پہلے آپ نے مینشن کرنا ہے کیا؟ جیولوجیکل ٹائم چارٹ. سب سے پہلے آپ نے بتانا ہے کہ دنیا میں یعنی دنیا جب سے پیدا ہوئی ٹائم چارٹ کہ جیولوجیکل ٹائم چارٹ کیا ہے کہ جب سے وقت شروع ہوا ہے اس وقت کو ہم نے مختلف زمانوں میں تقسیم کیا ہے اور ایک چارٹ بنایا ہے جس کو ہم جیولوجیکل ٹائم چارٹ جو میں نے ابھی ایریز کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ٹائم چارٹ ہے یہ کیسے بنا؟ کس نے بتایا کہ فلاں سال میں فلاں آرگنزم پیدا ہوئے اور فلاں میں وہ ختم ہو گئے، ایکسٹنکٹ ہو گئے، یا ان کی تعداد کم ہوئی یا بڑی؟ آخر یہ انفارمیشن ملی کیسے؟ اس کے سورسز کیا ہیں؟ اس کے انفارمیشن کے دو سورسز. نمبر 1 فاسل اسٹڈی. فاسل اسٹڈی اور دوسرا جو طریقہ کار ہے وہ ہے ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپس. ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپس. تو یہ دو طریقے کا ہے، دو طریقے ہیں جن کی مدد سے جو بایولوجسٹ ہیں یا سائنسدان ہیں انہوں نے جیولوجیکل ٹائم چارٹ بنایا ہے. یہ دو طریقوں کی مدد سے. پہلا طریقہ کیا ہے؟ فاسل اسٹڈی. اسی طرح سے آپ نے ہیڈنگ دینا ہے. ہیڈنگ دینے کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ اسٹڈی آف فاسل. پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ فاسلز ہوتے کیا ہیں. کہ فاسلز آر ریمینز آف ایکسٹنکٹ آرگنزم. فاسلز آر ریمینز آف ایکسٹنکٹ آرگنزم یعنی ریمینز آف ایکسٹنکٹ آرگنزمز. ایکسٹنکٹ آرگنزم یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ ایسے جاندار جو اس دنیا سے ختم ہو چکے ہیں، جن کا ایک بھی جو آرگنزم ہے وہ اس دنیا میں باقی نہ ہو، اس کو ہم فاسل کہتے ہیں. اب فاسل کی جب اسٹڈی کی جاتی ہے تو یہ فرض کریں ہماری زمین، یہ ہماری زمین ہے اور اس کی یہ مختلف تہیں ہیں. یہ سب سے نچلے والی تہ ہے، یہ اس سے اوپر والی تہ ہے، یہ اس سے اوپر والی، یہ اس سے اوپر والی، یہ اس سے، اور یہ وہ تہ ہے جس کے اوپر ہم رہتے ہیں. یہ سب سے نیچے والی. جب یہ سب سے نیچے والی جو لیئر ہے اس کی کھدائی کی گئی اس کی، تو اس میں جو فاسل اس میں نکلے ہیں وہ فاسلز پروکیریوٹس کے. پروکیریوٹس یعنی بیکٹیریا. اس کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ یہ سب سے نیچے والے زمین کے حصے میں یا زمین سے سب سے جو نچلی لیئر تھی اس میں یہ ڈسکور ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو سب سے پہلا آرگنزم پیدا ہوا وہ بیکٹیریا تھا. بیکٹیریا کے بعد یعنی جو فاسلز پیدا ملے ہیں وہ انورٹیبریٹس کے. انورٹیبریٹس ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ملے ہیں وہ ورٹیبریٹس یعنی فش ورٹیبریٹس. ٹھیک ہے، ورٹیبریٹس. اور کہا یہ جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا جو ورٹیبریٹ تھا وہ فش تھا. یہ ورٹیبریٹس. اس کے بعد ورٹیبریٹس کے بعد جو یعنی جو فاسل ملے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ہیں ایمفیبینس. ایمفیبینس یعنی فراگ وغیرہ. ایمفیبینس وہ جاندار ہوتے ہیں جو کہ خشکی اور پانی دونوں میں رہتے ہیں جیسے فراگ. ایمفیبینس کے بعد جو فاسل ملے وہ تھے ریپٹائلز. یعنی ایمفیبینس کے بعد کون سے؟ ریپٹائلز. ریپٹائلز کے بعد کون سے پیدا ہوئے آرگنزم جو جن کے وہ تھے برڈز. اور آخر میں میملز. یعنی اس دنیا میمل. تو یہ وہ سیکوینس تھی، یہ وہ سیکوینس ہے جس کے حساب سے ہمیں فاسلز ملے. تو اس لحاظ سے یہ ایزیوم کیا گیا فاسل کی اسٹڈی سے کہ جس جاندار کے فاسلز زمین میں سب سے نیچے ہیں وہ سب سے پہلے پیدا ہوئے، پھر اس کے بعد جو اس کے بعد آئے وہ اس کے بعد پیدا ہوئے. اس طرح سے ایک
ऑर्गेनिज्म की सीक्वेंस का अंदाजा लगाया गया है कि इस सीक्वेंस से ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ। अब दूसरी चीज ये है कि एम्फीबियंस का हमने कह तो दिया वर्टिब्रेट्स के बाद पैदा हुए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये कितने साल पहले थे। तो इसकी एज का अंदाजा लगाने के लिए कि एम्फीबियंस कितने साल पहले पैदा हुए, उनकी एज क्या, तो उसके लिए हमने ये दूसरा मेथड इख्तियार किया जिसको हम कहते हैं या कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। अब रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या होते हैं? देखिए ऐसे एक तो पहली बात यह है कि आइसोटोप किसको कहते हैं? आइसोटोप कहते हैं कि दो एटम जिनमें देखिए एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन की तादाद हमेशा सेम ही होती है। जैसे मिसाल के तौर पर जो ये जो क्या उसको कहते हैं ऑक्सीजन कहें, ऑक्सीजन फर्ज करें इसमें प्रोटॉन 8 और न्यूट्रॉन भी 8 होते हैं, लेकिन 8 की बजाय अगर फर्ज करें 9 है, यानी एक एटम में ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन की तादाद 9 है और दूसरे में 8 है, ये दोनों क्या है? एक दूसरे के आइसोटोप है। आइसोटोप का मतलब है कि जिस दो ऐसे एटम्स जिनमें न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट है, जिनमें न्यूट्रॉन की तादाद यानी उनके एटॉमिक मासेस डिफरेंट होते हैं, एटॉमिक नंबर सेम होता है, जिनमें दो ऐसे एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक मासेस डिफरेंट हो, उनको आइसोटोप्स का। अब ये जो आइसोटोप्स होते हैं ज्यादातर जो एसिड उनमें कुछ आइसोटोप्स जो हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव का मतलब है कि वो रेडिएशन खारिज करते हैं, रेडिएशन खारिज करते हैं, शुआएं खारिज करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनका जो मैस होता है वो कम होता जाता है। जैसे आपने केमिस्ट्री में हाफ लाइफ पढ़ा या फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, हाफ लाइफ ऑफ एन एलिमेंट, यानी किसी भी एलिमेंट की हाफ लाइफ का मतलब होता है कि वो टाइम जिसमें उसकी हाफ मैस जो है वो रेडिएट हो जाए, यानी वो रेडिएशन से खत्म हो जाए। तो ये तरीका जो है ये इख्तियार करते हुए इन आइसोटोप्स की जो है यहाँ पे ये जो आइसोटोप्स हैं इनकी स्टडी की गई कि यहाँ पे जो आइसोटोप है इनमें कितनी रेडिएशन हुई है, इनमें कितनी रेडिएशन हुई है और रेडिएशन होने के बाद इनकी मैस कितनी बची है। तो इस रेडिएशन होने को कितने साल लगे? फर्ज करें इसको 500 मिलियन साल लगे, 500 मिलियन साल, तो इसका मतलब है कि ये 500 मिलियन साल पुराना है, ये जो फासिल है ये 500 मिलियन साल। इसी तरह जहाँ भी रेडियो आइसोटोप की स्टडी की गई और अंदाजा लगाया गया कि इसकी उम्र कितनी है, फर्ज करें इसकी उम्र 400 मिलियन साल, तो इसका मतलब है कि ये ऑर्गेनिज्म जो है ये 400 मिलियन साल पुराना है। तो ये वो तरीका था जिससे जियोलॉजिकल चार्ट बनाया गया, जो कि मैंने अभी आपको जियोलॉजिकल चार्ट दिखाया भी था, जो एनिमल वाला पार्ट। तो गाइस जैसे मैंने कहा कि ये थोड़ा डिफिकल्ट ज़रूर है, लेकिन अगर आप इसको कोई चीज़ समझ ना आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मुझे बताएं कि कौन सी चीज़ समझ नहीं आई। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि इसको आपको सिंपल से सिंपल बनाया जाए। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। जैसे मैंने पहले भी कहा कि चैनल को सब्सक्राइब किया करें प्लीज़ और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें और थैंक यू वेरी मच।